फंक्शन मोड में
Okay, hi, I'm sorry I got delayed. Can you guys just confirm in the chat box that you are able to hear me properly? एक बार chat box में लिख दोगे यार सभी लोग कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक. Sincere apologies from my side for the delay. I think we were supposed to start at 8 and delay हो गया इसमें. I hope you all are able to okay. ठीक है. Yeah, fine. चलिए. Good. Okay, Shivansh. Thank you for the confirmation. Okay, Haley. Okay. Okay, S. Karan. ये S कौन है भाई? अपना नाम रख लो अच्छे से. Shelby. Fine. हरदीप सिंह. खुश. रितेश. ठीक है. Fine. चलो भाई. So just to give you a brief about this session. गेट हम दे चुके हैं. मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ हम सभी लोग वो हैं जिन्होंने गेट ऑलरेडी दे दिया है. कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक ठाक मार्क्स आएगा, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, कुछ एक्सपेक्ट आई होप यू वुड हैव चेक्ड योर आंसर कीज एंड यू हैव गॉट योर मार्क्स बाय नाउ. ठीक है. एंड यू वुड हैव गॉट योर मार्क्स आउट ऑफ 100 एज ऑफ नाउ. ठीक है. So based on our experiences of so many years, you know, I've been teaching students for 12 years now. So क्या क्या चीजें मिल सकती हैं हमें. ठीक है. माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीनेम योरसेल्फ विद द करेक्ट नेम फर्स्ट ऑफ ऑल. कुछ लोग DSK के नाम से यहाँ पे दिख रहे हैं. मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने माताजी पिताजी ने इतना सुंदर सा नाम रखा है तो रीनेम कर लो यार. सुंदर सा बढ़िया सा नाम रख लो अपना. ठीक है. rather than keeping it in a very funky way. ठीक है. the rest is your choice. So मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 20-25 मिनट मैं जो बात करने वाला हूँ उसके बाद I'll share my email ID and phone numbers also with you. You guys have to get in touch with me once the results are out. Exact results are out. It is expected that in March second week the results will be out. ठीक है. जो डेट दी जाती है उससे आगे पीछे रिजल्ट आ जाता है. ठीक है. टिपिकली जल्दी ही आ जाता है. ठीक है. बट सेकेंड वीक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गेट का रिजल्ट आ जाएगा और उसके पहले भी आ सकता है. ठीक है. It can come tomorrow also. It can come in the next 10 days also. Anytime it can come. But जब रिजल्ट आ जाएगा, so you need to be in touch with me for the next round for what you need to do. So I'll share my email ID and phone numbers also with you. Most of you, you can note down at the end of the session. मैं दे दूंगा आपको. अभी के लिए मैं आपको 4-5 चीजें बता देता हूँ. So people who are targeting PSUs, ठीक है, जिनको PSUs में जाना है through GATE score. So उसके अलग अलग नोटिफिकेशंस आएंगे. ठीक है. आपके ग्रुप पे हम लोग जब भी नोटिफिकेशन आते हैं we will be sending WhatsApp group and your Telegram groups of your respective centers. अगर आप सेंटर से टच में हैं, अगर आप ग्रुप्स पे नहीं हैं तो रहिए, वेबसाइट से टच में रहिए. ठीक है. so that you will come to know. Voice is cutting, Shivam is saying. Is it the case with others also? क्या मेरी आवाज कट रही है? Is it cracking? Okay. Is it fine now? Okay. Is it fine now? Oh, just a minute. I will change the Wi-Fi settings. Just give me a second. And I'll try to change the Wi-Fi setting. It is, yeah. Bandwidth is low, really, absolutely correct. I will just change it. Just give me a second. Okay. Is this sound fine now? I've changed the Wi-Fi settings. People who are having issues earlier, is it fine now? Can you give me in the chat box? अब आवाज ठीक है? There is no disturbance. I am sure it will be better now.
Yeah, people who are having challenges earlier, now I think I have changed the Wi-Fi, so this might be better. Can I have a confirmation now? Okay, great. बिगड़ गया है. Haley says it is not that great. Others, is it better or the earlier one was better? Okay, so I assume that others are able to hear me properly. Better. Gaurang says it is better. Okay. Rohit says it is fine. थोड़ा सा भी ऑडिबल. परफेक्ट. ठीक है हर्षा. क्लियर है. निशित सेज ओके फाइन. चलो ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ. आई एम श्योर ओके अपूर्व बेटर है. ठीक है, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ. जहां पर आपको कहीं ब्रेक लगे तो मुझे दोबारा बोल देना. आई विल रिपीट दैट पर्टिकुलर पार्ट अगेन. ठीक है. या सो समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर. तो मैं अपना नंबर आप लोग के साथ दूंगा. आई विल बी शेयरिंग माय नंबर आल्सो विद यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन, सो यू बी इन टच विद मी थ्रू व्हाट्सएप और एनी ऑफ द सोर्सेज. एंड जो लोग पीएसयूज को टारगेट कर रहे हैं तो उनके सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे. पीएसयूज में आपके इंटरव्यूज होंगे. ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं. जिनको कॉल आती है उनके हम लोग मॉक इंटरव्यूज कराएंगे. And mock interviews will be typically taken by people who are working in those companies. For example, अगर आपका ONGC का कॉल है तो कोशिश ये की जाएगी कि ONGC के किसी एग्जीक्यूटिव से आपकी कॉल कराएं. And those people will be typically our students. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पास्ट में जो ONGC क्रैक किए हैं और वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, they will be helping you in preparing for interviews. चाहे वो कोई से भी PSU का हो. ठीक है. Even for private companies who are appearing for any interviews. ठीक है, please come back to me. I'll try to help you as much as करेंगे कि हम लोग आपके एक या दो मॉक कराएं. ठीक है. इंटरव्यूज में कैसे जवाब देने होते हैं उसके ऊपर एक सेपरेट सेशन करेंगे. आज का सेशन वो नहीं है. आज का सेशन इंटरव्यूज को फेस करने वाला नहीं है. वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज और व्हाट आर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एनीथिंग ऑफ दैट काइंड हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. आज के सेशन में आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि पोस्ट गेट अब आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए. ठीक है. शुड यू गो फॉर ट्रिपल आईटी, शुड यू गो फॉर आईआईटी, कौन सी एनआईटी है. ठीक है. सो यू माइट बी नोइंग दैट मास्टर्स जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक डोमेन में नहीं होता है ना. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर से आप बिलोंग करते हैं, सो मैकेनिकल में मास्टर्स नहीं होगा. मास्टर्स विल बी इन फ्लूइड, मास्टर्स विल बी इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर्स होगा, थर्मल में मास्टर्स होगा. ठीक है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स नहीं होगा. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स विल हैव VLSI. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स विल हैव एम्बेडेड सिस्टम्स. तो आपके पावर सिस्टम्स, तो आपके डिफरेंट डोमेन्स होंगे जिसमें मास्टर्स होगा. और हर किसी की कट ऑफ अलग अलग जाती है. अच्छा, बाय द वे, आप जब भी आईआईटी की वेबसाइट पे देखोगे या किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे देखोगे, आपको लिखा होगा द कट ऑफ मार्क्स इज 530. द कट ऑफ मार्क्स इज लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, तो यार 100 में से मार्क्स तो मेरा 70 है, तो 700 कैसे आएगा. सो दोस आर ऑलवेज मार्क्स आउट ऑफ 1000, है ना. आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गेट स्कोर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट स्कोर जो आपका 100 में से आता है. और आईआईटी एक फॉर्मूला देता है जहां पे आपको पिछले 10 साल के बच्चों के साथ कंपेयर करता है और आउट ऑफ 1000 का स्कोर निकालता है. सो आपके लिए आउट ऑफ 1000 का स्कोर इंपॉर्टेंट है, नॉट आउट ऑफ 100 का स्कोर. आउट ऑफ 100 आपका शायद कोई भी स्कोर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आउट ऑफ 1000 वाला स्कोर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कट ऑफ्स होंगी वो उसके बेसिस पे डिसाइड होगी. ठीक है. इवन फॉर आईआईटीज आपको अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे. ठीक है. सो आपको अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे. COAP का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कॉमन एडमिशन का जो प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अभी. उस लिंक पे आपको जाना पड़ेगा अगर आपका आईआईटी का एनआईटी का फॉर्म आता है तो. ठीक है. एनआईटी के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है. ठीक है. कॉमन काउंसलिंग की जाएगी एनआईटी के लिए. ठीक है. वो भी हम डिस्कस करेंगे. और मैंने आपको कहा कि कहीं पे भी अटकते हो किसी भी कॉलेज में, इवन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी यू वांट टू अप्लाई, नॉट इवन आईआईटी एनआईटी, आपको बिट्स में अप्लाई करना है, बिट्स पिलानी में अप्लाई करना है. कई बार देखो ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिनका थोड़ा सा लो गेट स्कोर है, 40-45 का गेट स्कोर है, लेकिन उनको अच्छा कॉलेज मिल गया क्योंकि उन्होंने रिसर्च करते रहा. मेक श्योर दैट कहीं पे भी कहीं सीट खाली चली जाती है, कहीं पे कुछ डोमेन में आपको पता नहीं लगता है, तो ऐसे बहुत सारा होता है कि 3rd 4th राउंड में जाके भी आपको लो गेट स्कोर पे भी अच्छा आईआईटी मिल गया. जैसे आपने सुना होगा आरए करके एक पोजीशन होता है, रिसर्च असिस्टेंट. ठीक है. आरए, ठीक है, लिखना है तो लिख लो. इवन आरए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. वो 2 साल की जगह 2.5 साल या 3 साल लेता है, क्योंकि आपको उसको में एक इंटर्नशिप और थीसिस करने पड़ते हैं. बट आपकी प्लेसमेंट उन्हीं लोगों के साथ होगी जो एमटेक कर रहे होंगे उस कॉलेज से. तो आरए की पोजीशन भी कहीं निकलती है, अप्लाई फॉर इट. रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करो, सेम डिग्री मिलेगा आपको. हाँ, थोड़ा सा 2 साल की जगह 2.5 या 3 साल लग जाएगा, बट भाई पैसा भी उतना ही मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा. ठीक है ना. ठीक है. सो मैं क्विकली चीजों को दिखा देता हूँ अभी आपको. ठीक है. छोटा सा एक पीडीएफ है जो लास्ट ईयर के लिए हमने बनाया था. इस साल के लिए अभी एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो इस साल भी लेटेस्ट बना देंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट लेट मी गो थ्रू दिस पर्टिकुलर
पीडीएफ फॉर यू, ठीक है, दिस वाज लास्ट ईयर 2021 के लिए मैंने बनाया था, इस साल 2022 है ये, ठीक है। सो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल दैट इज कॉल्ड एज द COAP पोर्टल ऑफ 2021, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर थोड़ा सा बता देते हैं। सो COAP रेफर्स टू कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल ऑन व्हिच पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट TSCs will be uploading their offers, ठीक है। यहाँ पर वो ऑफर अपलोड करेंगे, ठीक है। इसकी वेबसाइट क्या है अभी बताता हूँ। रजिस्टर कैंडिडेट कैन एक्सेस द एडमिशन जॉब ऑफर बाय रजिस्टर, इस पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एमटेक करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर एडमिशन। ये पीपीटी दे दूंगा आपको, ठीक है। ये पीडीएफ जो है ये आपको बाद में मिल जाएगा, डोंट वरी, आपके ग्रुप पे भेज देंगे हम लोग, तो कॉपी पेस्ट या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, खाली समझ लो मोटा मोटा। For admission into MTech program in any of the participating institute or applying job in particular PSU, every candidate should also apply to the corresponding institute. मतलब आपको IIT बॉम्बे में जाना है तो IIT बॉम्बे का सेपरेट फॉर्म भी आपको भरना ही पड़ेगा। खाली गेट दे दिया अपने आप कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर IIT बॉम्बे में अप्लाई नहीं किया होगा, वो अपना एडमिशन ओपन करेंगे तब, तो आपको IIT बॉम्बे का इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। Who can register for COAP? Candidate must be an Indian national. That is the first requirement they have, ठीक है। My suggestion is keep your questions intact at the end. I will take up all your questions. Shivansh, yes, you can get this recordings also. Only those who candidate who have qualified GATE, ठीक है, ये 21, 2019 में 3 साल तक GATE वैलिड है, तो आपको पता होगा कि इस साल के लिए क्या हो जाएगा 2021, 22, ठीक है। जो GATE 2021, 22 3 साल में जो लिखे हैं उनके लिए ये लास्ट ईयर का पीडीएफ है, बिकॉज दिस ईयर तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, सो आई एम यूजिंग द लास्ट ईयर पीडीएफ टिपिकली। ये वो वेबसाइट है, लिखना है तो लिख लो अभी से। कैसे रजिस्टर करना है, coap.iit दिल्ली था लास्ट ईयर, ठीक है। सो आई विल गिव यू द लेटेस्ट लिंक आल्सो, बट आप COAP का वेबसाइट दे सकते हो। इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें मांगेगा आपसे, नाम मांगेगा, वैलिड गेट स्कोर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स आपसे बेसिकली वो लोग मांगेगा। क्या होता है फ्लो चार्ट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। रीड द प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीजें आपसे वो डिटेल मांगेगा। सबमिट कीजिए रजिस्ट्रेशन को, आपको एक लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिलेगा SMS और ईमेल के थ्रू, ठीक है। ऐसे लॉगिन वेरिफिकेशन कर लेते हो, एंटर एडिशनल गेट स्कोर, ठीक है। अगर आपका कोई एडिशनल गेट स्कोर है तो सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद आप जॉब ऑफर के लिए एलिजिबल हैं, जो जो भी पॉसिबल आपको दिख रहे होंगे उस पर, ठीक है। सो आई होप दिस प्रोसेस इज वेरी क्लियर। COAP के वेबसाइट पे जाना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट करना है डिटेल, लॉगिन वेरिफिकेशंस कराएगा आपसे, और आप जो भी ऑफर आपको मिल रहा है वहां पर बेस्ड ऑन योर स्कोर, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक्शन राउंड है, इसमें 2-2, 3-3 राउंड्स होते हैं, जैसे आपने जेई के टाइम पे भी किए होंगे, आपके अलग अलग राउंड्स होते हैं, ठीक है। यू विल बी हैविंग द फर्स्ट राउंड, द फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, क्योंकि क्या होता है, मान लो किसी बच्चे का 85 स्कोर है, तो उसको IIT बॉम्बे में मिल रहा है और उसको ONGC भी मिल रहा है, तो वो IIT बॉम्बे में सीट तो सिक्योर कर लेता है, लेकिन बाद में फिर जाके ONGC को ज्वाइन कर लेता है, तो IIT बॉम्बे का सीट छोड़ दिया ना उसने, तो वो सेकंड लिस्ट तैयार होती है। तो कभी कभी ऐसा मैंने बच्चे देखे हैं जो कि 45-50 मार्क्स भी लाए हैं और उसको IIT बॉम्बे मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो 3rd-4th राउंड तक बैठा हुआ था, ठीक है, वो वेट कर रहा था, एंड इट वाज अ रिस्क, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसको वहां पर वेकेंट सीट मिला, ऑन द स्पॉट राउंड मिला, एंड ही वाज गिवन दैट पर्टिकुलर, ठीक है। सो ये पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, कैसे फ्रीज करोगे। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज अगर आप करते हो, दैट मींस you are accept the offer without possibility of upgrading to a higher choice. आपने फ्रीज कर दिया, जैसे आपने ACPC का काउंसलिंग जिन लोगों ने किया है, सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने 12th के बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट किया होगा तो भी आप ऐसे कुछ करते हो इसी तरह का कॉमन काउंसलिंग, बस ऐसा ही है। तो एक्सेप्ट और फ्रीज कर दिया तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते बाद में, ठीक है। आपने फ्रीज कर दिया मतलब आप ओके हो इस चॉइस से, एंड यू वांट टू टेक दैट चॉइस। रिटेन एंड वेट का मतलब क्या है, ये जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ उसको, मींस यू पार्शियली एक्सेप्ट एनी वन ऑफ द ऑफर्स एंड वुड लाइक टू कंसीडर इट फॉर हायर चॉइस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। और रिजेक्ट का मतलब उसको छोड़ दिया आपने, ठीक है। सो ये फ्लो चार्ट में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से आप जा सकते हो। लेट्स से ऑफर 1, चूज द मोस्ट प्रिफर्ड ऑफर, सेलेक्ट, ये जैसे मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट की तरह समझाऊं, यहाँ से ऑफर 1 की बात कर रहा हूँ। सेलेक्ट एंड एक्सेप्ट, फ्रीज किया आपने, ठीक है, उसको यस किया, सबमिट किया, विजिट वेबसाइट, ठीक है, और उसको खत्म कर दिया। तो मतलब यहाँ पर फ्रीज कर दिया, मतलब अब आप और कोई अपग्रेड या चेंजेस नहीं चाहते, यू आर हैप्पी विद व्हाटएवर यू गॉट, ठीक है। पीडीएफ में दे दूंगा, आप आराम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये राउंड 1, राउंड 2 ये लास्ट ईयर की डेट्स हैं, अभी इस साल की डेट्स नहीं आई हैं। द मोमेंट इट कम्स, ये टेंटेटिव शेड्यूल इसी तरीके का रहता है हर साल, तो इस तरीके से आपको विंडोज मिलती हैं। राउंड 5 तक जाता है, ठीक है, राउंड 5 तक जाता है, ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं है। हाँ भाई, तो ये मत सोचना कि सर राउंड 5 तो होगा ही ना, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, टिपिकली राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी के लिए कुछ डेट्स मेंशन है, ठीक है। ऑनलाइन एडिशनल राउंड हुए थे लास्ट ईयर, क्योंकि
कोरोना था तो ये एडिशनल राउंड्स किए गए थे फॉर ऑनलाइन एडमिशंस, ठीक है। ये सब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टिपिकली आईआईएससी, आईआईटीज जो हैं इसके पार्टिसिपेट करती हैं, सो दीज आर द आईआईटीज टिपिकली यू कैन लुक एट, ठीक है। व्हाई शुड बी द प्रेफरेंस, तो एनआईआरएफ रैंकिंग सबसे पहली चीज आपकी जो प्रेफरेंस है, ये मैं आपको लिस्ट दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से एनआरएफ के कॉलेजेस हैं, ठीक है। सेकंड, परसेंटेज प्लेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि मैं आपके दुविधा कब आएगी पता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सिविल इंजीनियर और मुझे सर स्ट्रक्चर्स मिल रहा है आईआईटी बॉम्बे में और मुझे स्ट्रक्चर्स मिल रहा है लेट्स से आईआईटी खड़गपुर में, या ट्रशन मिल रहा है आईआईटी खड़गपुर, सर किसको सिलेक्ट करूं, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या, पहला एनआईआरएफ रैंकिंग देखिएगा, वो लिस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, पहले वो चेक करो। सेकंड, परसेंटेज प्लेसमेंट, ये मत देखना कि एक दो बच्चों को 20 लाख का पैकेज मिला है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के परसेंटेज ऑफ पीपल को कितना प्लेसमेंट मिला, एंड लुक एट द टॉप 50% बैच, टॉप 50% बैच को एवरेज प्लेसमेंट क्या मिला, डोंट लुक एट द ओवरऑल बैच, क्योंकि कुछ तो बेकार वाले बच्चे भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं टॉप 50% को कितना प्लेसमेंट मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इज दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है। मीडियन सैलरी ऑफर्ड, एज वी टॉकिंग अबाउट, डोंट लुक एट द मीन, लुक एट द मीडियन सैलरी, ऑलवेज लुक एट द मीडियन सैलरी। सर ये डेटा कहां से मिलेगा, मैं आपको अपनी वेबसाइट दूंगा, अपनी icegateinstitute.com की जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाओगे ना तो वहां पर एक कॉलेज प्रेडिक्टर नाम का चीज मिलेगा, ठीक है, कॉलेज प्रेडिक्टर, तो इट विल गिव यू अ बिग टेंटेटिव आइडिया, और कि कौन से मार्क्स पे कितना कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, इट विल गिव यू एन आइडिया, ठीक है। आप गूगल पे भी डालोगे कॉलेज प्रेडिक्टर आइसगेट, आपको मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, वहां पे डेटा डालो, स्कोर डालो, अपने आप बता देगा आपके लिए कौन से कॉलेजेस बने हैं, ठीक है। प्लेसमेंट की जहां तक मैं बात करता हूं तो आई विल बी एबल टू गिव यू सम डेटा, जैसे मैंने आपको बोला अगर आपकी कॉल आती है किसी कॉलेज की तो उधर पढ़ने वाले हमारे जो पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे हम आपको उनसे कनेक्ट करेंगे फॉर मॉक इंटरव्यूज आल्सो, एंड दे विल बी एबल टू गिव यू द राइट फीडबैक कि वहां पर क्या चलता है, वहां पर फैकल्टी अच्छी नहीं है या अच्छी है, या क्या क्या फैसिलिटी है क्या क्या फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और चौथी चीज जो आपको देखनी चाहिए दैट इज द रिसर्च अपॉर्चुनिटी कितना, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो ये 4 पैरामीटर्स टिपिकली यू शुड लुक एट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एनी ऑफ द कॉलेजेस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे आप, परसेंटेज प्लेसमेंट देखेंगे, मीडियन सैलरी देखेंगे, रिसर्च अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सब अगेन लास्ट ईयर का है, जैसे आईआईटी बॉम्बे है तो एनआईआरएफ रैंकिंग में फर्स्ट है, प्लेसमेंट पीजी का 93% है, मीडियन सैलरी 20 लाख के आसपास है। लास्ट डेट टू अप्लाई उसका 10th अप्रैल था, और ये उसकी वेबसाइट थी, उस पर जाके आपको अप्लाई करना था। ये प्रेफरेंस नंबर 1 टिपिकली आईआईटी बॉम्बे होती है, ठीक है, कंपेयरिंग टू ऑल द आईआईटीज एक्सेप्ट आईआईएससी, आईआईएससी तो खैर अलग ही लीग है, ठीक है। देन आईआईएससी बैंगलोर, एनआईआरएफ अगेन रैंकिंग 1 है, प्लेसमेंट 87% है, मीडियन सैलरी 18। अब मीडियन सैलरी में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं जहां पर प्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो मीडियन में तो आप सबको कंसीडर करते हैं ना, यू लुक एट योर ब्रांच, योर सेगमेंट जिसमें आपको जाना है, खाली उसी का आपको डेटा देना चाहिए, ठीक है। these are the websites which is given to you, so ये इस प्रेफरेंस में देना आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 5 है, 78% है, सो ये सब चीजें उसकी आप देख सकते हो, ठीक है। यू हैव हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद, देन आईआईटी कानपुर, ठीक है। सो ये सब डिपार्टमेंट वाइज मैंने आपको यहाँ पर चीजें दी, ठीक है। These are examples हैं, ठीक है, they are not the exact number, this is just an example, ठीक है। So you can go, IT उनकी सबकी वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन है, so you can go and click on the websites and you can see कि उन वेबसाइट्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। Okay, so the IIT मंडी, IIT पटना, so सारी IITs हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है कि हम किस प्रेफरेंस में तुम्हें कह रहे हैं कि इस प्रेफरेंस में तुम अपने फॉर्म्स भर सकते हो, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू अस एज अ फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, एज अ आइसगेट, ठीक है। So let me just quickly move on because ये लिस्ट आपको दे दूंगा मैं, this PPT you can easily enjoy later on. So let me just quickly scroll it further. Yeah. So typically जो COAP में कुछ IIT ऐसी हैं जो COAP के अंडर नहीं आती है, जैसे कि लास्ट ईयर तक IIT गांधीनगर सेपरेट फॉर्म ले रही थी, IIT धारवाड़ it was taking a separate form, this is not Dhanbad or धारवाड़, this is a separate IIT in धारवाड़, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया आपको कॉलेज का कॉलेज प्रेडिक्टर, ठीक है, और PSUs के गेट स्कोर के बेसिस पे कौन से कॉलेज में क्या मिलेगा, ठीक है, यू कैन इजीली लुक एट दैट, उस फैक्टर को आप बहुत आराम से इत्मीनान से देख सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ दैट पेज विल लुक लाइक, आई होप इट इज विजिबल, सबको दिख रहा है ना ये, ठीक है। ये अपना आइसगेट का वेबसाइट है, गेट रैंक प्रेडिक्टर, ऊपर आप URL देख सकते हो, ठीक है, icegateinstitute.com/gate rank predictor, यहाँ पे नाम डालो, कॉन्टैक्ट नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, ब्रांच डालो और अपना गेट स्कोर, जब भी आपका गेट स्कोर आ जाएगा उस पर डाल दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप
आपको बता देगा वो कि आप क्या रैंक आनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट गेट का एनालिसिस क्या होगा, प्रेडिक्टर, ये सब लास्ट ईयर का डेटा है, तो पिछले साल वाला मैंने आपको खोल के दिखाया है. सो दीज आर द प्रेफरेंस कॉलेजेस व्हिच यू कैन लुक फॉरवर्ड. क्लियर है? ठीक है, ओके, लेट मी कम बैक. You can only see PDF. Okay, just a minute. Oh, I'm sorry. Yeah, now I think you are able to see this. Yeah. So this is the URL. Okay, this is the rank predictor. icegateinstitute.com/rank predictor. Okay, now I think it is visible. Okay. Yeah. Okay. So यहाँ पर आप नाम डालिए, contact number, email ID. ठीक है. So you can just fill it up later on. लेकिन इसमें गेट स्कोर चाहिए. So गेट स्कोर जब आ जाएगा तो सबमिट करिएगा, तो पूरा आपको कॉलेज प्रेडिक्टर निकाल के दे देगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है. गेट स्कोर प्रेडिक्टर क्या मिल सकता है, मतलब आपका जो 100 में से स्कोर है, अगर उस पर क्लिक करते हो तो आप 100 में से स्कोर डालिए तो आपको बता देगा आपको 1000 में से क्या स्कोर रहने वाला. क्लियर है? ठीक है. सो लेट मी कम बैक टू द पीडीएफ नाउ. सो दिस विल बी द प्रेडिक्शन थिंग्स. ठीक है. सो हियर वी आर. सो दिस इज द पेज व्हिच आई जस्ट शो यू. ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी. ठीक है. यहाँ पे जो स्कोर डालना है वो आउट ऑफ 100 डालना है. ठीक है, स्कोर आउट ऑफ 100. ठीक है. तो यहाँ पे देखो कैसा उसका इमेज कैसा दिखेगा. प्रेडिक्टेड इंस्टीट्यूट आपके लिए प्रोबेबल, जो भी आपका स्कोर है उसके बेसिस पे आपको आईआईटी मद्रास मिल सकता है, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए है, तो ऐसा हर ब्रांच के लिए सेपरेट होगा. कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, रिलायबिलिटी, किस आईआईटी में आपको क्या क्या मिल सकता है बेस्ड ऑन योर स्कोर आप देख सकते हो. ठीक है, प्रेडिक्शन पे डाके चेक भी कर सकते हो अलग अलग. सेफ मैच मतलब ये तो मिल ही जाएंगे, ये तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी का स्कोर 600 मार्क्स है, तो 600 मार्क्स है तो 600 से नीचे वाले तो पक्का मिल जाएंगे. तो दीज आर योर सेफ मैच, मतलब ये पक्का इनकी जो कट ऑफ है, ये वाले सेफ मैच है, इनकी कट ऑफ 600 से तो नीचे जाती है पक्का. और ये वाले लोग जो हैं प्रोबेबल मैच, मतलब वो 600 के आसपास रहते हैं, 620 भी हो सकते हैं, 610 भी हो सकते हैं, समथिंग ऑफ दैट काइंड. एंड देयर कैन बी एन एम्बिशियस मैच, ऑप्टिमिस्टिक मैच. इनके कट ऑफ अगर थोड़ी सी कम गई, नॉर्मली इसकी कट ऑफ आपके स्कोर से ज्यादा रहती है. ये जो ऑप्टिमिस्टिक मैच है ना, ये जो ऑप्टिमिस्टिक मैच आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो ऑप्टिमिस्टिक मैच है, ये वो मैच है आपके लिए कि इनकी नॉर्मली कट ऑफ आपके स्कोर से ज्यादा रहती है, बट अगर कट ऑफ कम गई किसी भी कारण से तो आपको ये कॉलेजेस में मिल सकते हैं. ठीक है. सो ये अगेन ऑप्टिमिस्टिक मैच होगा, ये आपके प्रेडिक्टर के बेसिस पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ दिस इज सीसीएमटी फॉर एनआईटीज. ठीक है. आपने सुना होगा जो सीओएपी है वो आईआईटीज के लिए टिपिकली. ये सीसीएमटी क्या है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक इन एनआईटीज. तो ये आप देख लीजिए एनआईटी की लिस्ट, इसके अंदर पूरी दी हुई है कौन कौन से एनआईटीज हैं. ठीक है, ये इनके नंबर्स हैं. दीज आर नॉट द प्रेफरेंस ऑर्डर बाय द वे. ठीक है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है. सबसे अच्छी एनआईटी एज ऑफ नाउ एनआईटी तिरुचि है. ठीक है, एनआईटी तिरुचि इज द टॉप नॉच एनआईटी एज ऑफ नाउ. That is Tiruchirappalli. ठीक है, 25th नंबर पे लिखी हुई है. Followed by Surathkal, followed by Warangal. Then you can go to MLNR, Allahabad, Jaipur, MNIT, Menet, Bhopal. So these are some of the top NITs. उसके बाद you can select Agartala. Hamirpur is decent enough NIT. Raipur is decent enough. VNIT Nagpur is decent enough. तो सबसे पहला तिरुचि, followed by Surathkal. थर्ड नंबर पे वारंगल. फोर्थ नंबर पे यू कैन टेक इलाहाबाद, भोपाल और जयपुर. इन तीनों के बीच में कंपटीशन रहता है. एसवीएनआईटी सूरत वुड बी समवेयर अराउंड 10-12. इन माय रैंकिंग इट विल बी अराउंड 10-12. ठीक है. उसके पहले आप कई सारे वीएनआईटी को रख सकते हो, नागपुर रख सकते हो. ठीक है. देन यू हैव एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज दिस अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, ग्वालियर इज वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूट. ठीक है. Triple IT Allahabad is also a very good institute. Typically, people who are from computer science background can definitely look forward for this. ठीक है, these are very very good institutes. So ये सब institutes की list है. ठीक है, just go through these. These are some of the good universities. ठीक है. PSUs कौन कौन से undertakings हैं? So ये every year. This is again I am telling you last year का data है. So this year it might change. ठीक है, कौन कौन से PSUs हैं? ठीक है, जो कि अलग अलग notification निकाल सकती हैं. So have a look at this. These are some of the PSU lists which you can look at. ठीक है. इन सभी पीएसयूज के बारे में सबके अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे भाई. अगर आपको अप्लाई करना है तो सबके अलग फॉर्म होंगे. तो कुछ का तो सेपरेट एग्जाम भी होता है और कुछ गेट के थ्रू होंगे. ठीक है, तो आपको लेकिन इन सबके बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहनी पड़ेगी. जितनी हमारे पास आती है हम आपके ग्रुप पे भेजते चले जाएंगे. ठीक है ना. वी विल बी सेंडिंग एवरीथिंग ऑन योर ग्रुप्स आल्सो. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, उसकी एनआईएफ रैंकिंग 3 है, परसेंटेज प्लेसमेंट 93% है, मीडियन सैलरी है, तो मेरी प्रेफरेंस नंबर 1 बन गई.
IISc बैंगलोर क्यों प्रेफरेंस नंबर 2 बन गई, उसके रीजन ये तो जो हमने पहले बताया था आपको। अच्छा, एक कॉलेज है नेटी करके, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, MBA करना है प्रोडक्शन, खास करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चे लोग, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज बाय द वे, है ना, नेटी बहुत अच्छा कॉलेज है, मुंबई के अंदर है। अगर आप टेक्नो मैनेजर सॉर्ट ऑफ अ जॉब करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट, खास करके ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट है, अच्छा प्लेसमेंट है। आप देखिए 15 लाख का मीडियन सैलरी इज वेरी वेरी गुड, है ना, मीन सैलरी समवेयर अराउंड 18 लाख के आसपास है, ठीक है। तो 80% प्लेसमेंट्स वेरी वेरी गुड अक्रॉस, अगर कोई टारगेट करना चाहता है तो उस डिपार्टमेंट से, ठीक है। ट्रिपल IIT हैदराबाद इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट, यू कैन डेफिनेटली लुक एट, इसकी प्रेफरेंस नंबर 8 है। तो ये प्रेफरेंस दिया हुआ है इंक्लूडिंग NIT IIT सब कुछ मिला के, ठीक है, कि सर मैं ये NIT मिल रहा है, वो IIT मिल रहा है, तो ये देखिए प्रेफरेंस ऑर्डर। यू माइट डिसएग्री विद फ्यू 1 और 2 पॉइंट्स, बट मोर और लेस ये हमारी फैकल्टी टीम ने डिस्कस किया आपस में कि किस किस कॉलेज को क्या क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर का वी हैव गिवन यू ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास का, इवन इवन मोर देन दैट, 100 का लिस्ट है, 100 से भी ज्यादा है। तो इतने सारे कॉलेज की लिस्ट है भाई, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो कि मुझे क्या क्या रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NIT मेघालय में जाने से अच्छा है, इसकी रैंक 119 रखी है, ठीक है, NIT मेघालय में जाने से अच्छा है कि मैं जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर चला जाऊँ, समझ रहे हो, ठीक है। इट इज बेटर टू गो टू MS रमैया कॉलेज इन बैंगलोर कंपेयर टू NIT मेघालय, समझना। विज्ञान फाउंडेशन टेक्नोलॉजी इन गुंटूर इज अ वेरी गुड कॉलेज कंपेयर टू any other college. GH Raisoni College in Nagpur is better than these NITs. Is this point clear? ठीक है, बिकॉज वहां पे प्लेसमेंट्स नहीं, आप देख सकते हो ये प्लेसमेंट के डेटा यहाँ पे गिवन है, कितना मीडियन सैलरी है, मीन सैलरी है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है भाई। जहां जहां से हमें डेटा मिला, जो जो अवेलेबल था, वी हैव गिवन यू दोस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रोग्राम, इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जैसे MS मास्टर्स इन एनर्जी साइंस में क्या क्वेश्चन पूछे थे, अपना इंट्रोडक्शन बताओ, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बताओ, इंटर्नशिप किया है तो क्या किया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना, व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ऐसे देखो आपसे बहुत डिटेल में जो आपने गेट के लिए पढ़ाई की है ना, बस वही इंटरव्यू पूछेगा। टेक्निकल इंटरव्यू टिपिकली ही विल बी फोकस मोर ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड इन द गेट, ठीक है। आपके बेसिक, और आपको आंसर नहीं भी आता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, बट बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए आपकी ब्रांच। जो भी आपने, तो अपनी गेट की पढ़ाई को छोड़ मत देना, जो भी आप पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते रहो, 1 या 2 सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ो, ठीक है। भूमित, इफ यू आस्क मी कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, या डेटा साइंस के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, या फिर आप मुझसे पूछोगे कि सर थर्मल के लिए कौन सा, तो प्रेफरेंस ऑर्डर जो दिया गया है, सबसे पहले IIT या जो प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, एंड देन यू लुक एट कि उस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। जो मैंने कॉलेज की लिस्ट दी है प्रेफरेंस ऑर्डर में, उनको पहले देखो, और फिर देखो कि आपका कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल है, अगर है तो डेफिनेटली, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस की तरफ आप जाओ, समझ गए, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर इसीलिए दिया गया, ये PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अबे अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी अभी सवाल मत पूछो भाई, अभी अभी पहले ये सारी बातें खत्म कर लेने दो, 2 मिनट 5 मिनट और मेरे पास है, ठीक है। सो ये सब जस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एंट्रोपी एक्सप्लेन करो, व्हाट इज फोरियर नंबर, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय 1 ton of refrigeration, व्हाट इज Schmidt number, so these are some of the basics you can look forward for, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंप्यूटर से इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या सवाल आते हैं, तो अगेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका रहेगा, IPv4 क्या है ना, वाईफाई का फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, what is Google authentication, I'm not from computer science so I cannot give you what is this, but I'm trying to say is कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं, ठीक है। so these are some of the experiences मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। so I'll share this PDF with you, these are some of the examples which I can give you, ठीक है, right? So this is how it works, and I'm just sharing now quickly my details also. I hope you might be having, but still I'm just writing down my contact details also, so that's, you can save this. Once you get a call, I'll be very important for you, ठीक है। आपका कॉल जब आ जाएगा, ये सब भर दोगे, तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना है फॉर योर मॉक इंटरव्यूज एंड योर नेक्स्ट प्रोसेस। सो इट्स rohan@icegateinstitute.com, ठीक है, and that's my number, that's 9924927097, you can WhatsApp that to me, ठीक है, या फिर ईमेल कर सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल है, और गेटिंग एनी एडवाइजेस या कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ आई ओपन द हाउस
for questions if you have any. Let me quickly take up few questions which you are asking. Sir, SVNIT में self sponsored seat होती है, ठीक है. There are NRI seats, ठीक है, at times. Again, that depends upon college to college. उसकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा करण, ठीक है. सर, IIT consider only GATE score? Yes. जैसे IIT गांधीनगर ने इस साल निकाला है कि GATE score के बिना भी आपको ले लेगी, है ना. लेकिन वो क्या है, वो अर्ली एडमिट है, और अर्ली एडमिट उसी को मिलेगा जो यूनिवर्सिटी टॉपर है. तो अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो तो IIT गांधीनगर आपको लेगा. एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्लक्चुएट्स. पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं था, इसी साल उन्होंने लाया. सो करंट अफेयर्स में, न्यूज में रहिएगा, ठीक है. जहां जहां भी कुछ नया आता है आपके ग्रुप पे हम लोग उस चीजों को शेयर करते रहेंगे, ठीक है. सर, आई एम गेटिंग अराउंड 50 मार्क्स in the third year. Any guidance? See, in case you got 50 marks in the third year, Abhay, it's a very good sign. Next year you can definitely bank hard, because इस साल के बेसिस पे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, कोई इंजीनियरिंग तो खत्म करनी है ना भाई, ठीक है. सो माय सजेशन इज कंप्लीट योर कोर्स बाय जुलाई नाउ, ठीक है. दोबारा से एक बार जो लोग थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं वो जुलाई तक अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर ले. यू विल नॉट बी अनफॉर्चुनेटली एबल टू अप्लाई फॉर IIT दिस ईयर, ठीक है. नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करोगे, बट हाँ, तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी है कि इतने मार्क्स तो आ ही गए हमारे, ठीक है. So and in case you want some help more, please get in touch with me separately. मेरा नंबर दे दिया है मैंने, तो आप मुझसे अलग से भी बात करना, ठीक है. सिर्फ गेट क्रैक नहीं होता. व्हाट शुड बी द प्लान बी? शिवम, इट इज वेरी सब्जेक्टिव यार. सर, मेरा गेट क्रैक नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करूं, MBA करने चला जाऊं, या फिर मैं जॉब ले लूं, तो देयर कैन बी अ वेरी डिफरेंट आंसर्स टू ऑल, ठीक है. माय सजेशन वुड बी, एक बार मैंने आपको मेरा नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप करो अपनी प्रोफाइल, आप क्या कर रहे हो अभी, किस डोमेन में, बिकॉज आई डोंट नो, ठीक है. आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू. यू कैन ईमेल मी अप, ठीक है. मेरा ईमेल आईडी दिया है आपको, rohan@icegate.com. यू राइट मी डिटेल अबाउट योर प्रोफाइल, व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड व्हाट आर द प्लान्स यू हैव. हमें कोई जॉब है, नहीं है, आप एक साल के लिए ड्रॉप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग, एंड देन आई विल गिव यू माय ओपिनियन, ठीक है. एंड इन केस वी वांट, वी कैन टॉक ओवर द फोन आल्सो, ठीक है. नीरव पूछ रहे हैं, सर, सेल्फ स्पॉन्सर्ड के अंदर कितने इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? आगे नीरव, इट्स सब्जेक्टिव टू यूनिवर्सिटी. हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना फंडा होता है, तो आप कौन से कॉलेज में देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, निर्मा जैसे सेल्फ इंस्टीट्यूट में आप मास्टर्स के लिए जाओगे तो उनका क्राइटेरिया अलग होगा, NIT का क्राइटेरिया अलग होगा, ठीक है. सर, गेट में 2 पेपर से अप्लाई किया था, तो उससे कैसे यूज करें? भाविन, वो आपको ऑप्शन देगा. जब आप COAP के फॉर्म में जाओगे, आपको बोलेगा कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, IIT बॉम्बे में आप जा रहे हो एंड आपने XC का पेपर भी दिया है और आपने मैकेनिकल का पेपर भी दिया है, तो आप दोनों जगह के लिए अप्लाई कर सकते हो. दोनों के आपको पैसे भरने पड़ेंगे, दोनों के लिए आपको अलग अलग 200-500 रुपए जो भी वो मांगेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा. सो 2 times you have to apply for that, अगर आप दोनों स्कोर से अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा कि XC की कट ऑफ 600 मार्क्स है, और मैकेनिकल आपके 2 स्कोर आएंगे आपके स्कोर कार्ड में भी, अगर आपने दोनों पेपर दिए हैं तो, और मैकेनिकल की कट ऑफ 700 मार्क्स. तो आप जिस कैटेगरी में फिट होते हैं उसके थ्रू आप अप्लाई करो, ठीक है. ट्रिपल IIT हैदराबाद गिव डायरेक्ट गेट स्कोर? नो, ट्रिपल IIT का खुद का एग्जाम लेता है, ठीक है, हैदराबाद हर्ष, ठीक है. सो उसको एक बार देख लेना, ठीक है. IIT की वेबसाइट पे सब कुछ मेंटेन है, ट्रिपल IIT की वेबसाइट पे मिलेगा. इस PDF में यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन दिस, ठीक है हर्ष. यू कैन इजीली गेट थ्रू दिस. DICT कैसी है? डिसेंट इनफ कॉलेज, ठीक है, बट मैं इसको IIT से कंपेयर नहीं करूंगा. एवरेज गेट स्कोर ऑफ 500 के आसपास पे मिल जाता है DICT. डिसेंट कॉलेज है, अच्छा खासा कॉलेज है. अगर आपका गेट स्कोर देखो, एक तो होता है ना कि मैं चूजर हूं, मतलब मेरा 100 में से 80 मार्क्स है, तो मैं बहुत कुछ सोचूं, लेकिन अगर 100 में से 40-45 ही है तो मैं मर गया, ठीक है. फिर तो मुझे जो बेस्ट मिल रहा है वो ले लेना चाहिए. सो अगर आपका 45-50 के आसपास स्कोर है एंड गेटिंग इनटू अ लोअर NIT, उससे बेटर है DICT ले लो, ठीक है. डेफिनेटली बैकलॉग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ IIT बार करेंगे आपको, ठीक है. वो IIT टू IIT वेरी करता है कि 60% मार्क्स मांगती हैं. कुछ IITs जो होंगी 60% मार्क्स मांगेंगे राहुल, ठीक है. ध्रुवी फॉर IIT गांधीनगर यूनिवर्सिटी टॉपर शुड बी CPA वाइज और CGPA ओवरऑल. यूनिवर्सिटी टॉपर शुड बी ओवरऑल. उसकी क्राइटेरिया पढ़ लो, IIT गांधीनगर की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसने पूरा क्राइटेरिया लिखा है. ने पूछा था कि सर खाली इसी सेमेस्टर के मार्क्स गिने जाएंगे या टोटल गिने जाएंगे, तो ओवरऑल है उसमें. फिर भी आप नोटिफिकेशन देख लो, अगर नहीं मिलता है तो मुझे पिंग करो, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ठीक है. ओके शिवम, ओके विल्सन, सर आई एम गेटिंग अराउंड दिस स्कोर, व्हाट अबाउट 40 मार्क्स, तो चांस ऑफ गेटिंग गुड कॉलेज? यस, बहुत ग्रेड तो नहीं मिलेगा विल्सन. 40 नंबर के आसपास में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगी. NIT देखो, नॉर्मली IIT जो होती है अच्छी ब्रांच के लिए 60-70 के बाद खत्म हो जाती है. NIT इज 45 से 60 के बीच, एंड देन यू हैव प्राइवेट कॉलेज. तो अगर किसी का स्कोर 40 है तो बहुत गंदा स्कोर है वो, ना तुम बेकार हो ना तुम बहुत अच्छे हो, तो यहाँ पे बीच में फंस गए हो, ठीक है ना. सो ये इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन. या तो मैं 60-70 ले आता सर, ठीक है, तो मेरा काम हो जाता. अब थोड़ा सा कम है उसमें, ठीक है. निश्चित सेम गोस फॉर यू, ठीक है. सर आई हैव एन ऑफर फ्रॉम MNC, ओके गुड.
गो फॉर जॉब भाविक, गो फॉर जॉब। 43 पे कुछ नहीं मिलेगा बेटा, एज ऑफ नाउ कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए फाइट मार गेट के लिए और अभी जॉब स्टार्ट कर दो, ठीक है। इफ यू गॉट अ जॉब विच इज अप्रोक्सीमेटली 5-6 लाख रुपए तक का नौकरी मिल रहा है गुड कंपनी में, गो फॉर जॉब। नेक्स्ट ईयर फिर से गेट लिखो, दूसरे एग्जाम पे देते रहो, जिस दिन अच्छा करोगे उस दिन मास्टर्स के लिए चले जाना। राहुल, नो, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। Sir, my expected score is this. I think Nishit, I have answered that. Sir, I am from instrumentation. Yeah, Bhavik, that's okay. That's fine. But still 43 पे नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। I think I have answered this question. Yes, so CGPI को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। 6.5 CGPI होता है, 0.5 होता है माइनस करने का। Deven, so if you are in the third year, I think you have sufficient time to research on this, ठीक है, तो उसको रिसर्च कर सकते। किशन, जो मैंने अभी परसेंटाइल प्रेडिक्टर या कॉलेज प्रेडिक्टर का नाम बताया ना, उस पे कैटेगरी भी पूछेगा आपसे। तो अगर आप किसी SC, SC, BC या OBC कैटेगरी में आते हो तो उसका कट ऑफ देख लो लास्ट ईयर का, तो मिल सकता है आपको। किशन, यू कैन डेफिनेटली गेट इट। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। 54 इज अ गुड स्कोर। NIT मिल जाएगा, NIT अच्छा डिसेंट इनफ का NIT मिल जाएगा, कुछ IITs में मिल जाएंगे। अगर आप कौन सी ब्रांच से उस पर डिपेंड करता है और कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप टॉप नॉच ब्रांच में जाना चाहते हो तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी बॉटम वाली ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। CS में 54 एवरेज स्कोर है, नॉट ग्रेट नॉट बैड, ठीक है, राइट। सो वी हैव स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 70, 75 के स्कोर भी लाए हैं, ठीक है। तो उसके सामने तो डेफिनेटली एवरेज, और इतना कंपटीशन बढ़ गया है CS में तो खास करके, तो 54 विल बी एन एवरेज। ट्रिपल IIT ट्राई करो, बिल्कुल ट्रिपल IIT के लिए फोकस करो, ठीक है। NITs कुछ मिल जाएंगे आपको डेफिनेटली, और अच्छी NIT वाली मिल जाएंगी, ठीक है। आगे मैंने कहा लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लो यार, कॉलेज प्रेडिक्टर पे डालो, आप गूगल पे डालो कॉलेज प्रेडिक्टर, नहीं लिंक मिलता तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं शेयर करूँ, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सबके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं मोस्टली। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछने को रहता है, आई होप दिस सेशन वाज हेल्दी इनफ, कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ छोटा मोटा डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे। अभी बहुत सारे लोग तुमसे कुछ कहेंगे, यू नो, बहुत कुछ बात करते रहेंगे, ठीक है। राहुल, वंस द, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। 9 PM वाला सेशन तो 9 PM ही होगा भाई, बजने तो दो ना, ठीक है। सो आई एम एंडिंग अप दिस सेशन नाउ, ठीक है। ये PDFs और चीजें आपको मिल जाएंगी, और मेरा नंबर आपको मैंने सेव कर लिया होगा आपने, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए लेटर ऑन, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कम बैक टू मी, आई विल लव टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अलर्ट रहिए, चीजों को लाइटली मत लेना, ठीक है। कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना, क्योंकि इंटरव्यूज में आएंगे और आगे भी कोई PSUs अगर अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगी तो उन सब में आपको फायदा लगेगा। गुजरात लेवल के PSUs को भी आप दे सकते हो, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, उनमें आप अप्लाई करो, जॉब के लिए भी अप्लाई करो। पढ़ाई आपके लिए कहीं पे वेस्ट नहीं होगी, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, है ना। डेफिनेटली गेट की पढ़ाई आपके लिए हर जगह पे मददगार ही होगी, ठीक है। सो टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। चलिए गाइस, ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।